Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Student, in my previous videos, I have already started the chapter diseases and we have discussed what is a disease. We also studied about chickenpox, hepatitis, COVID-19 and disease conditions caused by viruses. We also studied about some bacterial diseases like typhoid, tuberculosis. So today I'm here with the chapter Diseases, Cause and Control Part 4. Before I continue the video, I request each and every one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Today I'm going to talk about diseases caused by protozoa. So what are we waiting for? Get ready with your paper and pen and let's start. So the very first disease caused by protozoa is malaria. Yes, I know you all have heard about it. The causative agent for malaria is protozoan plasmodium. And we all know malaria कैसे होता है? मच्छर के काटने से, right? So the carrier is a female Anopheles mosquito. Mosquito का नाम है Anopheles mosquito and it is a female mosquito. Now let's see how the protozoa is being carried by this mosquito. The uninfected mosquito, जो मॉस्किटो में अभी इन्फेक्शन नहीं है, वो बाइट करेगा किसी इन्फेक्टेड पर्सन को. इन्फेक्टेड पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. ओके, so when this uninfected mosquito bites a infected person, the parasite is being sucked with the blood. blood के साथ में जब मॉस्किटो ब्लड को सक करेगा, उस ब्लड के साथ में पैरासाइट भी उस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाएगा. मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जाने के बाद द पैरासाइट्स मल्टीप्लाइज इन मॉस्किटोज गट. ओके, and now this infected mosquito is known as the malaria vector. अभी ये जो मॉस्किटो है एज अ वेक्टर काम करेगा. Let's see this in detail. With this diagram we can understand how the mosquitoes is getting infected and how the infected mosquito is spreading the parasite. This is the mosquito which is infected. इसने बाइट किया है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को और ये मॉस्किटो अभी इन्फेक्टेड हो गया है. ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो को हम क्या बोल रहे थे बच्चों? मलेरिया वेक्टर. ओके, ये वेक्टर है. अभी ये फैलाएगा. कैसे फैलाएगा? ये एक बाइट करेगा और सक करेगा ब्लड किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को. ओके, जो कि इन्फेक्टेड नहीं है. जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन था उसकी बॉडी में ये इन्फेक्शन चले गया, ये प्लाज्मोडियम अंदर चले गया बॉडी में. तो जो ब्लड सेल्स हैं, जो आरबीसीज हैं, वो क्या हो जाते हैं बच्चों? इन्फेक्टेड हो जाते हैं. ओके, और ये इन्फेक्टेड आरबीसीज अभी जब कोई अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो सक करेगा ब्लड, तो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटोज भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ये जितने भी पर्सन को बाइट करेगा उन सब को वो अपना जो प्लाज्मोडियम कैरी कर रहा है, प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, वो सबको स्प्रेड करेगा. अंडरस्टूड? सो देखो कितनी जल्दी से मॉस्किटोज के वाया ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है. द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मलेरिया इज 3 weeks. नाउ लेट्स सी द सिम्टम्स. वी ऑल नो स्टूडेंट्स, मलेरिया में क्या होता है? बहुत जोर का बुखार आता है, तेज बुखार आता है ना. सो हाई ग्रेड फीवर, ठंडी लगती है एंड पसीना आता है. दीज आर द फर्स्ट 3 मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. रिगार्डिंग द जीआई ट्रैक, ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की अगर हम बात करेंगे, ओके, जीआई ट्रैक की अगर हम बात करेंगे, द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ डायरिया, दैट इज लूज मोशन, nausea and vomiting. Other symptoms may include fast heart rate, headache, mental confusion and pallor. Okay, so these are different symptoms of a person who is suffering from malaria. So as we told, which is the vector? malaria का vector कौन है? कौन फैला रहा है? carrier कौन है? It is a mosquito. So let's talk about the prevention and treatment. So the very first step will be avoiding the mosquito bite.
अगर मच्छर काटेगा ही नहीं तो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाएगा ही नहीं, right? So to avoid mosquito bite, what all things we can do? First, we can wear full sleeves clothes. Okay, we can cover the skin. If we are wearing long sleeves cloth, we are covering our skin. So mosquito bites को हम avoid कर सकते हैं. Then second is the insect repellent. What is insect repellent? जैसे कि कुछ क्रीम्स आती हैं या स्प्रेज आते हैं, वो बच्चे अगर गार्डन में खेलने जा रहे हैं या फिर कोई बाहर इवनिंग टाइम में निकलता है, क्योंकि मॉस्किटोज ज़्यादातर जब अंधेरा होता है, ओके, इवनिंग टाइम तब ज़्यादा बाहर निकलते हैं, ओके, तो उस टाइम पे जैसे गार्डन जा रहे हैं या पार्क जा रहे हैं, सो वी कैन यूज इंसेक्ट रेपेलेंट. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रोल ऑन द फैब्रिक्स और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे. देन द थर्ड वे इज यूजिंग अ नेट. व्हेन यू आर स्लीपिंग हम क्या यूज कर सकते हैं, नेट का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मच्छर हैं भी तो सोते टाइम हमें वो नहीं बाइट कर सकते. ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या है प्रिवेंशन का, वी हैव टू अवॉइड द मॉस्किटो बाइट्स. द सेकेंड स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग मलेरिया इज प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग. ओके, आजू बाजू मॉस्किटोज रहेंगे नहीं तो काटेंगे नहीं, तो ब्रीडिंग कैसे रोकेंगे हम, मल्टीप्लाई मतलब मॉस्किटो को ब्रीड होने से कैसे रोकेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एलिमिनेट एनी स्टैंडिंग वाटर. कहीं भी रुका हुआ पानी है, ओके, फ्लावर पॉट्स हो जाता है, देन टायर्स हो जाते हैं, अनयूज टायर्स पड़े रहते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो पानी रुका हुआ है, स्टैंडिंग वाटर है, उसमें क्या होते हैं, मॉस्किटो अपने एग देते हैं और फटाफट मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ओके, सो हम इस स्टैंडिंग वाटर को निकाल के फेंक सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं. ओके, देन एम्प्टी और ड्रेन और कवर ऑल द थिंग्स दैट कैन एंड मे होल्ड वाटर. ऐसी कोई भी जगह जैसे कि गटर्स हो गया, जैसे एज आई टोल्ड यू फ्लावर पॉट हो गया, सो उनमें जो पानी इकट्ठा हो सकता है या रहता है उसको हम एम्प्टी कर सकते हैं, या फिर अगर कंटिन्यूस पानी जाता है तो उसको हम ड्रेन कर सकते हैं. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग. एंड द लास्ट वे हाउ वी कैन प्रिवेंट मलेरिया इज बाय मॉस्किटो फॉगिंग. ये आप लोग ने देखा होगा ना, फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे आते हैं फॉगिंग के लिए. ओके, गटर्स में डाला जाता है, डस्टबिन्स में डाले जाता है ऐसा फॉगिंग, जिससे क्या होता है, मॉस्किटो मर जाते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम मलेरिया को होने से रोक सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. फॉर द ट्रीटमेंट डिफरेंट ड्रग्स लाइक क्यूनिन, पैलुड्रिन, कैमोक्विन, like these many drugs can be given which will treat malaria. Okay, which will try to kill the protozoa plasmodium. Okay, to reduce the body temperature, antipyretics are given, and to reduce the pain, analgesics are given. So symptomatically the treatment is given. So this was all about malaria. Now coming to the next disease condition which is caused by protozoa. The disease name is amoebic dysentery. ओके, और ये जो डाइसेंट्री है, डाइसेंट्री मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव लूज मोशन. ओके, उसको हम डाइसेंट्री बोलते हैं. तो इट इज कॉल्ड एज एमीबिक डाइसेंट्री एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिजीज इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. ये जो ऑर्गेनिज्म है, इट विल अटैक द इनर लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो इनर लाइनिंग को है उसको ये ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करने वाला है. तो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से ये आएगा हमारी बॉडी में, इज बाय ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स. ओके, कच्ची वेजिटेबल्स अगर हम अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हैं, देन इट कैन कम थ्रू दोज रॉ वेजिटेबल्स. देन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग कैसा वाटर, कंटामिनेटेड वाटर. देन द फ्लाइज एंड द फूड हैंडलर्स. ओके, फ्लाइज के थ्रू भी ये ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ सकता है. द फ्लाई में कैरी दैट organism if the flies are sitting on the food or if they are sitting on the utensils, it can be transmitted to a human. So the mode of infection is fecal-oral route. What are the symptoms of amoebic dysentery? The symptoms are एब्डोमिनल पेन. जैसे कि हमने बोला कि किसको अफेक्ट कर रहा है, ये हमारे इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग को अफेक्ट कर रहा है. तो इंटेस्टाइन अफेक्ट होएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्पिंग वाला पेन होएगा, क्रैम्प आएगा. देन डायरिया, दैट इज द लूज मोशन, और उस मोशन में
क्या दिख सकता है? प्रेजेंस ऑफ म्यूकस हो सकता है, या तो स्टूल में पस रहेगा, या तो इवन ब्लड कैन ऑल्सो अपीयर इन द स्टूल। तो लूज मोशन तो रहेंगे, डायरिया तो रहेगा, लेकिन उस स्टूल में, ओके, उस स्टूल में या तो म्यूकस, पस और ब्लड तक हो सकता है। देन एज आई टोल्ड यू इट इज इन्फेक्शन, तो डेफिनेटली बॉडी में क्या दिखेगा? हमें टेम्परेचर दिखेगा। ओके, सो फीवर विल बी देयर। So I repeat all the symptoms one more time. The abdominal pain, it will be a cramping pain, and diarrhea, the presence of mucus, pus or blood in stool, and fever. तो बच्चों कैसे प्रिवेंट करेंगे इस ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर आने के लिए? अभी देखो, वी कैन रिलेट इट विद द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जिस तरीके से हो रहा है ये ट्रांसमिट, बस उसी को रोकना है। ओके, सो वी नो इट इज अ फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होएगा। सो हमें प्रिवेंशन में क्या करना है बच्चों? अच्छा हैंड हाइजीन रखना है। ओके, अगर हम खाना खा रहे हैं तो उससे पहले हमें हैंड वॉश करना है, वॉशरूम टॉयलेट यूज करने के बाद भी हैंड वॉश करना है। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ओके, जो भी वेस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ वेस्ट इट इज, इट हैज टू बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, only boiled drinking water can provide prevention against amoebic dysentery. What else? As I told you, it can be spread by eating raw vegetables, so we should avoid eating raw veggies. Then second is a control of flies, क्योंकि ये flies के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। flies भी कैरी कर सकती है ये ऑर्गेनिज्म को, राइट? सो flies का हमको कंट्रोल करना है। There are different ways we can control fly. घर में साफ सफाई बना के रखना है, डोर्स एंड विंडोज को बंद रखना है ताकि फ्लाइज एंटर ना कर सके। घर का एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। देन वी कैन यूज फ्लाई ट्रैपर्स, फ्लाई को रोकने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए फ्लाई ट्रैपर्स रहते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स वी कैन डू टू कंट्रोल फ्लाइज। Then for the treatment, students, medications are given. Okay, the important medication for this disease condition is metronidazole. Okay, दवाई का नाम क्या है? metronidazole, which is a kind of antibiotic. बच्चों, आपको हर एक डिजीज कंडीशन का अलग ड्रग्स है, उन ड्रग्स को याद रखना है। अभी आपकी बुक में ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है ड्रग्स, एटलीस्ट 1-1, 2-2 ड्रग्स आपको हर डिजीज कंडीशन के पता होना चाहिए। ओके, सो फॉर दिस यू कैन लर्न द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक metronidazole. So this completes the second disease condition, amoebic dysentery. It is also called as amoebiasis. Now we come to the third disease condition, that is sleeping sickness. Okay, yes, you heard me right. The next disease condition is sleeping sickness. नींद नहीं आ रही है, देखो ऐसी भी बीमारी होती है। Okay, and the other name for this disease condition is African trypanosomiasis. Okay, तो ये disease condition का दूसरा नाम है African trypanosomiasis, also known as sleeping sickness. The causative agent is definitely a protozoa. Two species of trypanosoma. The first is Trypanosoma brucei gambiense, and the second species Trypanosoma brucei rhodesiense. So these both are the subspecies of Trypanosoma. The mode of transmission for sleeping sickness is the bite of tsetse fly. Okay, ये जो fly है इसका नाम है tsetse fly, और बच्चों हम इसका नाम अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो फ्लाइज है ये कहाँ मिलती है? ज्यादातर सब सहारन अफ्रीका रीजन में ये फ्लाइज दिखने को मिलती है। ओके, वेयर इज सब सहारन अफ्रीका? इट इज इन द साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट तो पता है ना अफ्रीका का। सो टुवर्ड्स द साउथ ऑफ दिस सहारा डेजर्ट ये tsetse फ्लाई आपको बहुत मिलती है, और यही फ्लाई इस स्लीपिंग सिकनेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोआ है उसको अपने साथ कैरी करती है। ओके, नाउ लेट्स सी द सिम्टम्स। द सिम्टम्स वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 फेजेस। द फर्स्ट फेज विल बी अ फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, एंड द इम्पॉर्टेंट इज अ रेज्ड रेड सोर। ओके, रेड कलर का, अभी ये काटेगी जब ये, तो वहां पे क्या होगा? उस जगह पे रेडनेस हो जाएगा, एक सोर हो जाएगा उधर, ठीक है, निशान हो जाएगा रेड कलर का। देन डेफिनेटली कोई कुछ बाइट करता है तो क्या होता है? इचिंग होती है ना,
तो skin will become itchy and there will be joint pain, fever and headache. So we divide the symptoms of sleeping sickness into two phases. The first phase is flu-like symptoms. The raised red sore at the bite site. There will be itchiness and joint pain. With it, the patient may complain of fever and headache. तो कुछ symptoms जो हमको first phase में दिखाई देंगे, you can see here this in the diagram. Okay, तो ये first phase हो गया. Then second phase में क्या होगा, जब ये और आगे बढ़ता जाएगा इस disease condition में patient, तो second phase में it will affect the central nervous system. Okay, जो हमारा CNS है, जो कि बहुत important है बच्चों, तो ये सेकेंड फेज में सीएनएस को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन, पुअर कोऑर्डिनेशन, नमनेस एंड इवन ट्रबल इन स्लीपिंग. ओके, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज स्लीपिंग सिकनेस. द पेशेंट इज नॉट एबल टू फॉल asleep. ओके, देयर इज लॉट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन. तो देखो बच्चों, इट इज वेरी सिवियर. ओके, इट इज वेरी फेटल ऑल्सो. इन द सेकेंड फेज इट इज अफेक्टिंग द सीएनएस. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज गेटिंग अफेक्टेड. So this bimari is not very okay type. It can be fatal also. So what can we do for the prevention? As we know, what is the mode of transmission? The mode of transmission, it is caused due to the bite of tsetse fly, right? So prevention क्या करेंगे हम prevent करने के लिए उसी fly को prevent करेंगे. जैसे हमने पहले पढ़ा फ्लाइज का कैसे प्रिवेंशन होता है, पूरी तरह फुल स्लीव्स के क्लॉथ पहनने का, रेपेलेंट, इंसेक्ट रेपेलेंट यूज करने का. Yes, then we can wear or we can use mosquito net. Okay, net use कर सकते हैं. So this is the only prevention how we can prevent the bite of tsetse fly. For the treatment, बच्चों इसमें आपको कौन सा ड्रग का नाम याद करना है, मेलार्सोप्रोल. मेलार्सोप्रोल इस ड्रग का नाम आपको याद करना है फॉर स्लीपिंग सिकनेस. द ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन द फेज ऑफ द डिजीज. कौन से फेज में अभी वो पेशेंट पहुंचा है डिजीज के, ज्यादा सिवियर है, सेकेंड फेज में है क्या फर्स्ट फेज में, वैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है. इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज, जो अर्ली सिम्टम्स रहेंगे उनको सिम्टोमेटिकली हम लोग ट्रीट करते हैं. ओके, डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं. जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, जहाँ पे खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है उस जगह पे, देन जॉइंट पेन है तो उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो जैसा सिम्टम्स रहेगा वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है. बट इन द सेकेंड फेज स्टूडेंट्स, हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि क्या होता है इसमें सीएनएस इफेक्ट हो जाता है, तो पेशेंट आगे फर्दर इट कैन बी फेटल ऑल्सो. ओके, सो हॉस्पिटलाइजेशन करके ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है वायर इंजेक्शन और इंट्रावेनसली, आईवी के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स दिया जाता है, दवाई दी जाती है. ओके, तो इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये घर पे नहीं कर सकते. तो सेकेंड फेज में हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, जबकि फर्स्ट फेज में ट्राई करते हैं सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देने का. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट sleeping sickness. So this complete our diseases which are caused by protozoa, all the three: malaria, amoebic dysentery and the sleeping sickness. If you have any doubt, you can comment down and ask your doubt. I will try my best to clear your doubts. Now jumping to the diseases caused by parasitic worms. बात करेंगे वैसी बीमारियों के बारे में जो कि वर्म से होती है. ओके, पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं. पैरासाइटिक मतलब क्या होता है बच्चों, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आके, एनिमल बॉडी के अंदर आके मल्टीप्लाई होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको ही बीमार करते हैं. ओके, तो ऐसे हम 3 डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे आज. द फर्स्ट इज एस्कैरियासिस कॉज्ड बाय राउंड वर्म्स. तो राउंड वर्म्स कैसे रहेंगे बच्चों, ये एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल वर्म है. ओके, जैसे अर्थवर्म का साइज रहता है ना, उसी साइज का ऑलमोस्ट ये राउंड वर्म्स भी रहते हैं. जो फीमेल रहती है, जो फीमेल रहेगी वो थोड़ी सी क्या रहती है, लॉन्गर रहती है. एंड जो मेल रहेगा उसका जो पीछे हिंड पार्ट रहेगा ना, कर्व्ड रहेगा. सो उसको देख के पता चल जाता है कि मेल कौन सी है, फीमेल कौन सा है. ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपको, एस्कैरियासिस कॉज्ड होता है राउंड वर्म्स की वजह से. और ये राउंड वर्म्स 2 होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं. जो फीमेल रहती है वो थोड़ी सी लेंथ में लॉन्गर रहती है, और मेल को हम देख के पता कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द कर्व्ड एंड.
सो एज आई टोल्ड दिस इज अ पैरासाइटिक वर्म्स। तो ये क्या करते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में आके ही क्या करते हैं, हमारा सारा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं, हमसे ही न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। सो स्टूडेंट्स, अभी ये जो एस्कैरिस के एग्स हैं, ठीक है, ये फीसेस में निकलते हैं बाहर, ओके, स्टूल में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसा खाना और पानी जो कि कंटामिनेटेड है फीसेस से, उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, एग्स प्रेजेंट रहेंगे एस्कैरिस के। सो हाउ दे आर गोइंग टू एंटर आवर बॉडी, इट विल एंटर द बॉडी वाया माउथ। ठीक है, तो हमने खा लिया ऐसा कंटामिनेटेड फूड को, तो माउथ से अभी ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद बच्चों जो एग्स रहेंगे वो हैच हो जाएंगे। ओके, इट विल हैच हियर इन द इंटेस्टाइन। ओके, और माइग्रेट हो जाएंगे वाया ब्लड, ब्लड से माइग्रेट होके लंग्स में पहुंचेंगे, और लंग्स से ये पहुंच जाएंगे हमारे ट्रकिया में। ओके, देन दे आर कव्ड अप और स्वॉलो किए जाते हैं। ओके, तो ट्रकिया में पहुंचने के बाद व्हेन वी आर कफिंग और दे आर स्वॉलोड, ओके, so they are swallowed and they reach the stomach। तो ये जो एग्स थे जो हैच हो गए थे, ब्लड के थ्रू माइग्रेट होके लंग्स में गए, एल्वेलाई में गए, ट्रकिया में पहुंचे, देन स्वॉलो हुए गए और स्टमक में पहुंच गए। अभी स्टमक में पहुंचने के बाद अभी ये देखो एग से पहुंचे थे ना, अभी क्या हो गया, ये लार्वा बन गए। ओके, नाउ दिस लार्वा विल अगेन सेकेंड टाइम एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द सेकेंड टाइम, और अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या बन जाएंगे, अडल्ट वर्म्स बन जाएंगे। अभी लार्वा बन गए थे, अभी ये अडल्ट वर्म बन जाएंगे। ओके, और सारा न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं, ये बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी से ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी साइकिल हमारे पेट में चलेगी, हमारे इंटेस्टाइन में चलती है, हमारे बॉडी में इनकी लाइफ साइकिल चलती है और हमको बीमार करती है। ठीक है, अभी आप बोलोगे मिस ये क्या है, सी स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये वो एग्स हैं जो कि हैच नहीं हुए। ओके, थ्रू दी फीसेस दे आर एक्सपेल्ड आउट। कुछ एग्स, सारे एग्स में से कुछ एग्स ऐसे भी होते हैं जो कि बिना हैच हुए ही स्टूल से बाहर निकल जाते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। नाउ सी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, सो एज वी टोल्ड, ये क्या है, फीको ओरल रूट से आ रहा है कि नहीं, ये फीको ओरल रूट से स्टूल से मिट्टी में आ रहा है, या फिर किसी खाने में लग रहा है, या वाटर में लग रहा है, और ये इंजेक्शन से बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, ह्यूमन इसको ले रहा है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, उसके एग्स प्रेजेंट है। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जैसे कि मैंने तुमको बताया अभी एस्कैरिस का लाइफ साइकिल। ओके, एंड इस तरीके से वो क्या हो जाता है, हमें इन्फेक्ट करता है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स, क्योंकि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बैठ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिम्टम्स क्या रहेंगे, जीआई से रिलेटेड रहेंगे, लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, नोशिया, ब्लोटिंग, गैस लग रही है। ओके, ब्लोटिंग फील हो रहा है। देन देर इज लॉट ऑफ वेट लॉस। ओके, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन जो भी हम खा रहे हैं उससे न्यूट्रिशन कौन ले रहा है, ये वर्म्स ले रहे हैं। ओके, और क्योंकि कीड़े हो गए पेट में तो क्या होगा, स्टमक पेन हो रहा है। ओके, एंड इवन पासिंग ऑफ वर्म इन द स्टूल, स्टूल में कई बार वर्म तक बाहर निकल जाता है। सो कैसे प्रिवेंट करने का बच्चों, कीड़े ना हो पेट में, क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन, द वेज टू प्रिवेंट इज वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजीज। ओके, डायरेक्ट उसको नहीं खाना है, क्योंकि सॉइल में गिर सकता है, तो अगर सॉइल इन्फेक्टेड रहेगी, है ना, अगर ओपन में डेफिकेट किया है, अगर डेफिकेशन है, वहां पे स्टूल है किसी का, तो अगर सॉइल इन्फेक्टेड है तो फ्रूट्स एंड वेजीज भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ओके, सो वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन अवॉइड कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन फीसेस, ह्यूमन फीसेस से किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट हमें अवॉइड करना है। देन गुड हाइजीन, वॉशिंग हैंड्स, ओके, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। देन एक्स्ट्रा केयर टू बी गिवन फॉर यंग चिल्ड्रन। सी, हमें पता है बच्चे लोग मिट्टी में खेलते हैं, कुछ भी चीज मुंह में डालते हैं, है ना, नेल्स हमको उनको ट्रिम करके देना पड़ता है बच्चों लोग को, तो एक्स्ट्रा केयर हमको बच्चों की देनी है, क्योंकि उनको इजिली ये कीड़ों का प्रॉब्लम होता ही है। ओके, देन वॉशिंग हैंड एज आई टोल्ड यू विद सोप बिफोर ईटिंग एंड हैंडलिंग फूड। सो दीज आर द डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स वी कैन टेक टू प्रिवेंट एस्कैरियासिस। तो ये तो प्रिवेंशन हो गया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बच्चों को कीड़े हो जाते हैं पेट में तो क्या करते हैं, वी प्रोवाइड देम दीज टू मेडिसिन। द फर्स्ट इज मीबेंडाजोल एंड द सेकेंड इज एल्बेंडाजोल। ओके, तो मीबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल, ये दो ड्रग्स आपको याद करने हैं
for roundworms. Okay, for the disease caused by roundworms, Ascariasis. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एस्कैरियासिस. अभी ऐसे ही दूसरा वर्म से एक और डिजीज होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. द नेम इज टाइनियासिस. The second disease condition is टीनियासिस. ओके, अभी ये जो टीनियासिस है ये कॉज होता है टेप वर्म से. देखो दूसरा वर्म है. ओके, ये वर्म कैसे टेप की तरह होता है. मेजरिंग टेप कैसे फ्लैट होता है ना, उसी तरह ये वर्म भी रहता है टेप वर्म. ओके, और इस बीमारी को हम बोलते हैं टीनियासिस. द अदर नेम फॉर द टेप वर्म इज टीनिया सोलियम. Okay, the other name for tapeworm is Taenia solium. So this is caused by tapeworm, and the two different types से ये हो सकता है. या तो infected pox से हो सकता है या तो infected बीफ खाने से. ओके, तो अगर infected pox कोई खा रहा है या तो कोई infected बीफ कंज्यूम कर रहा है तो ऐसे कीड़े पेट में हो सकते हैं. ओके, so this is tapeworm. So now let's talk about the life cycle of Taenia solium. So for understanding this life cycle of Taenia solium, हमें पता है बच्चों वो किससे ट्रांसफर होता है. या तो वो इन्फेक्टेड पॉक्स से होता है या तो इन्फेक्टेड बीफ से. अभी इनके पास ये इन्फेक्शन कैसे पहुंचता है, अगर ये इन्फेक्टेड ग्रास को इंजेस्ट करते हैं. ठीक है, इन्फेक्टेड ग्रास मतलब क्या है, ऐसा वेजिटेशन, ऐसा ग्रासेस या फिर ऐसा खाना जो कि कंटामिनेटेड है एग से. ओके, कंटामिनेटेड है एग से. कौन से एग से, टेप वॉर्म के एग से इन्फेक्टेड है. तो वो इनकी बॉडी में चले जाता है और इनकी बॉडी के मसल सेल्स में वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. मसल्स में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है. और जब अगर ह्यूमन खाते हैं, ठीक है, पॉक या बीफ को खा रहे हैं लेकिन अच्छे से कुक नहीं कर रहे हैं. ओके, कच्चा खा रहे हैं या फिर अंडर कुक्ड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो भी बॉडी में अंदर आ जा रहा है. ओके, और बॉडी में अंदर आ गया तो फिर सिम्टम्स दिखाएगा वो अपने. ओके, तो इस तरीके से टीनिया सोलियम हमारी बॉडी तक, हमारे ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है. सो व्हाट आर द सिम्टम्स? The symptoms will be definitely the GI symptoms like abdominal pain, diarrhea, nausea and vomiting. पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, कीड़ों से रिलेटेड, ठीक है, उन सब में आपको बोलना है ये सिम्टम्स कॉमन रहेंगे. एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नोशिया एंड वॉमिटिंग. हियर देयर विल बी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. क्यों बच्चों, देखो हमने कहा ये पैरासाइट्स है ना, ये वर्म्स क्या हैं, पैरासाइट्स हैं. तो ये हमारी बॉडी में रह के हमारा सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट गेन नहीं होता है, जबकि क्या होगा, वेट लॉस होएगा. ओके, एंड द सेगमेंट्स ऑफ टेप वर्म इज ऑल्सो विजिबल इन स्टूल, सेम एज एस्कैरियासिस. उसमें भी हमें राउंड वर्म्स दिखते हैं स्टूल में, वैसे ही टीनियासिस में भी वर्म्स, टेप वर्म विजिबल होते हैं स्टूल में. सो दीज आर सम सिम्टम्स. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिवेंट. प्रिवेंशन बेसिक तो सब सेम रहेगा, ठीक है, हैंड हाइजीन, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, ये सब सेम रहेगा. लेकिन क्योंकि इसका एक स्पेशल चीज क्या है, ये क्यों होता है, बाय द इन्फेक्टेड बीफ एंड पॉर्क. तो हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी प्रिवेंशन के लिए, वी हैव टू कुक द मीट प्रॉपरली. ओके, तो अगर प्रॉपरली उसे कुक किया जाएगा, रॉ नहीं खाया जा रहा है, अनकुक्ड नहीं खाया जा रहा है, तो वो ह्यूमन की बॉडी में इन्फेक्शन नहीं पहुंच पाएगा, वो एग्स ह्यूमन की बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगे और पेशेंट को या फिर पर्सन को टीनियासिस नहीं होगा. ओके, तो मीट को प्रॉपरली कुक करना है एट द प्रॉपर टेम्परेचर. एंड रिमेनिंग प्रिवेंशन इज सेम, हैंड हाइजीन एंड ऑल. The treatment is also same बच्चों. The treatment is anti-parasitic drugs like albendazole and a special one is praziquantel tablets are also given for टीनियासिस. Now coming to the last disease condition caused by parasites is filariasis. It is also known as elephantiasis. Okay students, देखो आपको ये दिख रहा है फिगर. ओके, सो इस बीमारी को हम बोलते हैं
एलिफेंटियासिस। एलिफेंट के जैसा लेग इसका अपीयर हो रहा है ना, तो इसलिए इस बीमारी को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। द कॉजेटिव एजेंट फॉर दिस डिजीज इज वुचेरिया बैनक्रॉफ्टे एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय कुलेक्स मॉस्किटो। सो ये देखो, ये हमारा सेकंड डिजीज कंडीशन आ गया। एक हमने पढ़ा था मलेरिया, ओके, जो कि मॉस्किटो बाइट से ही हो रहा था, राइट। लेकिन मलेरिया जो मॉस्किटो बाइट से हो रहा है, दैट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बट हियर दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय पैरासाइट, ओके, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। स्टूडेंट्स, ये जो टाइनी वर्म्स होते हैं ना, ये किधर रहते हैं? ह्यूमन बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम और कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं, स्पेशली लिम्स में, ओके, लोअर लिम्स और अपर लिम्स में ये वर्म्स रहते हैं इन द लिम्फेटिक सिस्टम एंड द कनेक्टिव टिश्यू। इन्फेक्शन आएगा क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से, ओके। नाउ लेट्स सी द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज कंडीशन। द वेरी फर्स्ट जो स्टार्टिंग में होएगा वो है लिम्फेडिमा, ओके। लिम्फेडिमा मतलब क्या है बच्चों? फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, ओके। फ्लूइड कलेक्ट दिख रहा है आपको, मोटा दिख रहा है एक पैर, तो फ्लूइड कलेक्शन होएगा और स्वेलिंग आएगी। सबसे पहला फीचर हमको यही देखने को मिलता है। देन इज दी एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस नाम ही दिया है इसका, तो इसमें आपको क्या दिखेगा बच्चों? यू कैन सी इन दिस इमेज द स्किन एंड द अंडरलाइंग टिश्यू विल बिकम वेरी थिक जस्ट लाइक एन एलिफेंट, ओके। तो मोटा तो होता है और एलिफेंट की तरह थिक भी हो जाती है स्किन, ओके। सो नेक्स्ट सिम्टम्स इज एलिफेंटियासिस, एंड द थर्ड सिम्टम you can find in such patients are hydrocele. What is hydrocele? There will be swelling in scrotum. For the males who are suffering from elephantiasis or filariasis will show the symptom of swelling in the scrotum also. So how can we prevent and what is the treatment for this disease condition? As we know, this is transferred by the bite of Culex mosquito. तो mosquito को control करना है. All the same preventive measures that we have discussed, how we can control flies or how we can control mosquito. Vector control is important. Hand hygiene, cleaning the affected area to avoid infection. Infected area मतलब क्या है? जहाँ पे bite किया है ना, तो उधर clean रखना है ताकि infection severe ना हो सके. Then is elevate the swollen part. जहां भी सूजन आ रखी है, क्योंकि बाइट होने के बाद क्या बोला हमने? लिम्फेडिमा होएगा, ओके। तो जहां भी स्वेलिंग आई है उस पार्ट को थोड़ा एलिवेटेड रखना है ताकि कलेक्शन ना हो सके लिम्फ का, स्वेलिंग कम हो जाए। देन लाइट एक्सरसाइज टू बी डन, ओके। ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? पेन होएगा और एरिया स्वलन है, तो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट देयर शुड बी लिटिल लाइट एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म. For the treatment, medications like albendazole is given to control the worms. ठीक है, हमने वर्म्स के जितने भी पढ़े पैरासाइट वर्म्स, उन सबको कंट्रोल के लिए एल्बेंडाजोल इज अ मस्ट मेडिसिन फॉर ऑल द पैरासाइटिक वर्म्स. ये वर्म्स क्या करते हैं बच्चों? ये लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लेग में क्या होता है? स्वेलिंग आती है, ओके, और वो एलिफेंट की तरह थिक हो जाता है लेग. सो ये जो वर्म्स है वो कलेक्ट हो जाते हैं और ये लिम्फेटिक सिस्टम को पूरा ब्लॉक कर देते हैं, सप्लाई सर्कुलेशन होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है. तो एल्बेंडाजोल देंगे तो हम इनके वर्म्स को कंट्रोल में कर सकते हैं. देन इज द एंटीबायोटिक फॉर द इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर द स्वेलिंग एंड एनाल्जेसिक्स फॉर द पेन. So students, I hope you have understood all the disease condition caused by parasitic worms. Let's quickly revise what we have discussed today in this video. First, I discussed about the protozoal diseases like malaria, amoebic dysentery and the sleeping sickness. Then I discussed the parasitic diseases like ascariasis, teniasis and filariasis. So I hope you have understood all these 6 disease conditions. If you have any doubt, feel free to comment below. Before winding up, I like to request everyone to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching. Bye bye.